ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج ہم آپ کو فلم ایکوامین کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو 2018 میں ریلیز ہوئی تھی۔ اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کا حصہ بننا نہ بھولیں۔ آئیے کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ 1985 کا سال تھا۔ سمندر کے کنارے ایک آدمی ہے۔ وہ لائٹ ہاؤس میں اپنے روزمرہ کے کاموں میں مصروف تھا۔ وہ ایک لڑکی کو بچاتا ہے جو سمندر سے آئی تھی۔ وہ زخمی تھی اور جو اٹلانٹس کی شہزادی ہے۔ بنیادی طور پر اٹلانٹس پانی کے اندر ایک بہت بڑا شہر ہے جہاں سے یہ لڑکی آئی ہے۔ دونوں ایک ساتھ کافی وقت گزارتے ہیں اور آہستہ آہستہ ایک دوسرے کو پسند کرنے لگتے ہیں۔ کچھ عرصے بعد ان کی شادی ہو جاتی ہے اور ایک لڑکا پیدا ہوتا ہے۔ اس کا نام آرتھر ہے۔ اس کے پاس تمام سمندری مخلوقات سے بات کرنے کی طاقت ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ تمام سمندری مخلوق سے بات کر سکتا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ اٹلانٹین کے فوجی ان کے گھر آتے ہیں۔ ان کا مشن اپنی شہزادی کو اٹلانٹس واپس کرنا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ وہ اس کے خاندان پر اس قدر حملہ کرتے ہیں کہ اسے زبردستی اپنے خاندان اور بیٹے کو چھوڑنا پڑا، کیونکہ سپاہی انہیں مار سکتے تھے اگر وہ ایسا نہ کرتی۔ اپنے خاندان کو بچانے کے لیے وہ فوجیوں کے ساتھ واپس چلی جاتی ہے۔ شہزادی اپنے ایک خاص مشیر پر بھروسہ کرتی ہے، لہذا وہ اس سے آرتھر کو ایک ہنرمند جنگجو کے طور پر تربیت دینے کو کہتی ہے تاکہ وہ ہماری طرح لڑنے کا ہنر سیکھ سکے۔ آرتھر اب بڑا ہو گیا ہے۔ اسے اٹلانٹس واپس آنے کی دعوت دی گئی ہے۔ مشیر نے کہا یہ اب پہلے بیٹے ہیں اور اب میں وہاں بادشاہ بننے کی صلاحیت ہے، لیکن آرتھر نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ اس کی ماں کو صرف اس لیے قتل کیا گیا تھا کہ اس نے ایک انسان سے محبت کی اور اس سے شادی کی، اور میں ان سے پیدا ہونے والا نصف نسل کا بیٹا ہوں۔ یہ وجہ میرے لیے بیکار ہے۔ اس نے کہا کہ میں کبھی اٹلانٹس واپس نہیں آؤں گا۔ دوسرے منظر میں ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ کچھ قزاق ایک روسی آبدوز کو لوٹ رہے ہیں اور آرتھر انہیں یہاں بچاتا ہے۔ لڑائی کے دوران قزاقوں کا لیڈر آرتھر کے ہاتھوں مارا جاتا ہے۔ اس لیڈر کا بیٹا ڈیوڈ بھی وہاں موجود ہے۔ جب ڈیوڈ نے دیکھا کہ آرتھر یعنی ایکوامین نے ڈیوڈ کے والد کو مار ڈالا تو وہ اس سے بدلہ لینے کا ارادہ کرتا ہے۔ اب ہم ایک اور مرکزی کردار دیکھتے ہیں جس کا نام ہے اورم۔ وہ اٹلانٹس کا بادشاہ بننے والا ہے۔ وہ آرتھر کا سوتیلا بھائی بھی ہے جو پانی کے اندر رہتا ہے، جس کا مطلب ہے کہ وہ اٹلانٹس میں رہتا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے میں آپ کو یہ فرق بتاتا چلوں کہ اورم پانی کے اندر رہتا ہے اور وہ آرتھر زمین پر رہتا ہے۔ اورم مختلف بادشاہوں سے ملتا ہے جو اٹلانٹس کے نیچے مختلف شہروں میں رہتے ہیں۔ اورم ایک بادشاہ سے کہتا ہے کہ ہمیں زمین پر انسانوں پر اوپری سطح پر حملہ کرنا چاہیے کیونکہ وہ ہمارے سمندر کو آلودہ کر رہے ہیں اور آلودگی پھیلا رہے ہیں، لیکن وہ بادشاہ زمین پر انسانوں پر حملہ کرنے کے حق میں نہیں ہے۔ لیکن وہ سوچتا ہے کہ اگر مزید 4 بادشاہ اورم کی حمایت کرتے ہیں تو وہ اوشین ماسٹر کا حقدار ہوگا، جس کا مطلب ہے کہ وہ کمانڈر بن جائے گا اور اس کے فیصلے قبول کیے جائیں گے۔ جب وہ بات کر رہے تھے ایک روسی آبدوز آ کر ان پر حملہ کر دیتی ہے۔ یہاں اورم اس بادشاہ کو بچاتا ہے اور یہ دیکھ کر وہ بادشاہ اورم کی حمایت کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ اس بادشاہ کی ایک بیٹی ہے جس کا نام میرا ہے، جس کی شادی اورم سے ہونی تھی لیکن وہ اس سے شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس کے پاس فرار ہونے کا صرف ایک ہی راستہ ہے جو آرتھر ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ اگر آرتھر یہاں آتا ہے تو اورم بادشاہ نہیں بنے گا۔ اس نے اوپری سطح زمین کا سفر کیا اور وہ آرتھر سے ملاقات کی۔ وہ اس کی مدد مانگتی ہے اور مطالبہ کرتی ہے کہ وہ پانی میں واپس آ جائے، اور تم سب سے بڑے بھائی ہو، تمہیں بادشاہ بننے کا حق ملتا ہے۔ لیکن آرتھر انکار کرتا ہے۔ کچھ دیر بعد میرا نے اس کا اعتماد جیت لیا کیونکہ اورم سمندر کی ایک بڑی لہر بھیجتا ہے، اور یہاں میرا وہ ارتیریسا کے والد کو بچاتی ہے۔ یہ دیکھ کر وہ میرا پر بھروسہ کرنے لگتا ہے اور اس کے ساتھ پانی میں آتا ہے۔ آرتھر اپنے استاد سے ملتا ہے جس نے اسے لڑنے کی تکنیک سکھائی ہے۔ وہ سپاہی تھا جس پر اس کی ماں سب سے زیادہ بھروسہ کرتی تھی۔ وہ اسے کہتے ہیں کہ آپ کو ٹرائیڈنٹ تلاش کرنا ہے، اس میں بہت طاقت اور جادو ہے، اور اگر کسی کو یہ مل گیا تو وہ اس سے پوچھے بغیر بادشاہ بن جائے گا۔ وہ بہت طاقتور ہے، یہاں تک کہ اگر آپ اسے شکست دینے کے بعد دعویٰ کریں تو وہ آپ کو کبھی جیتنے نہیں دے گا۔
जब वो बात कर रहे थे ओरम की फौज के सिपाही यहाँ आते हैं और उन पर हमला करते हैं और आर्थर पकड़ा जाता है। आर्थर को जंजीरों में कैद ओरम को पेश किया जाता है। ओरम इस पर इल्जाम लगाता है कि तुम मेरी मां की मौत की वजह हो और तुम ही वजह हो कि मलिका को फांसी दी गई। ओरम इसका भाई है और आर्थर से कहता है कि मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूं, इस इलाके को खैर के लिए छोड़ दो और कभी वापस न आना। ओरम ने कहा कि कभी पानी में वापस न आना, लेकिन आर्थर गुस्से से इसे लड़ने का चैलेंज देता है। वो दोनों यहाँ लड़ाई में पड़ जाते हैं। पानी के अंदर माहौल में मौजूदगी की वजह से ओरम के जीतने का ज्यादा इम्कान है। ओरम को पानी में शिकस्त देना आर्थर के लिए निगलने के लिए एक मुश्किल गोली है। लड़ाई जारी है और आर्थर मरने वाला है जब मेरा वहां आती है और आर्थर को बचाती है। ट्राइडेंट तलाश करने के लिए जिसे वो तलाश कर रहे हैं वो सहरा में जाते हैं। सहरा वो जगह थी जहां ट्राइडेंट बनाया गया था। उन्हें वहां एक होलोग्राफिक पैगाम मिलता है जो इस बात की निशानदेही करता है कि उन्हें इटली जाना है और वहां उन्हें कोऑर्डिनेट मिलेंगे जो ट्राइडेंट का मकाम बताएंगे। त्रिशूल बुनियादी तौर पर एक नेज़े की तरह है जिसमें बहुत सारी जादुई ताकतें हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ओरम डेविड से मिलता है। डेविड वो लड़का है जो इस मरे हुए समंदरी डाकू का बेटा था। वो एक्वामैन से बदला लेना चाहता है। यहाँ ये भी इंकिशाफ हुआ है कि रूसी आबदोज जिसने पानी के बादशाह पर हमला किया था उनकी बाहमी साजिश का नतीजा था। ये ओरम का मंसूबा था कि डेविड बादशाह पर हमला करेगा और वो इसे बचा लेगा, और ये कि किंग हमदर्दी में इसकी हिमायत करेगा। ओआरएम डेविड को जदीद तरीन अटलांटीन बैटल सूट देता है जो कि जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी है जिसे सिर्फ आबी बाशिंदे ही इस्तेमाल कर सकते हैं। डेविड इस टेक्नोलॉजी का तजर्बा करता है और खुश होता है कि अब वो आर्थर को मार कर बदला ले सकता है। वहां ओरम किंगडम ऑफ फिशरमैन के एक और बादशाह को मारता है और उन्हें इसकी हिमायत पर मजबूर करता है। ओरम क्योंकि किंगडम ऑफ फिशरमैन का बादशाह फौत हो चुका है इसलिए वो मलिका और शहजादी को अगले मोर्चों पर लड़ने पर मजबूर करता है। वो उनसे आर्मी जमा करने को कहता है। हम यहाँ डेविड को देखते हैं जो एक जदीद टेक्नोलॉजी के सूट को तब्दील करता है जिसे ओरम ने इसके लिए सुपर हीरो सूट में दिया था। इसे पहनने के बाद वो मजीद ताकतवर हो गया। उसने इसका नाम ब्लैक मांटा रखा है। ये सूट पहनने के बाद वो बहुत ताकतवर हो जाता है। हम देखते हैं कि आर्थर और मेरा इन नुकात को तलाश करने के लिए इटली में है। जब डेविड वहां हमला करता, डेविड, ब्लैक मांटा और आर्थर वहां शदीद लड़ाई में पड़ जाते हैं। आखिरकार आर्थर ने डेविड को पहाड़ों से नीचे फेंक दिया। लड़ाई के दौरान आर्थर जख्मी हो गया है। मेरा इसके जख्मों का इलाज करती है और इसे हिम्मत देती है। वो कहती है कि तुम्हें बादशाह बनना है और तुम इतने नाजुक नहीं हो सकते। आपको वो ट्राइडेंट की तलाश में निकले। सफर के दौरान उन्हें कई राक्षसों का सामना करना पड़ता है और उन्हें शिकस्त देकर वो जमीन के वस्त तक पहुंच जाते हैं। ये जमीन का मरकज है। वो दोनों वहां पहली बार अपनी मां को देखते हैं जो मलिका अटलानिना थीं जिन्होंने इस खंदक में आकर खुद को कुर्बान कर दिया है। इस खंदक में आना मौत के बराबर है, लेकिन मलिका अटलानिना इसे कोई नुकसान पहुंचाए बगैर वहां बच गई और वो काफी अरसे से यहां जिंदा थी। अब आर्थर और मेरा भी वही हैं और वो एक दूसरे को गिले लगाते हैं। ये एक जज्बाती मंजर है। अब वो ट्राइडेंट के बहुत करीब हैं लेकिन आर्थर अकेले ही जा सकते हैं। मेरा इसकी मां इसके साथ नहीं जा सकती। आर्थर ट्राइडेंट तलाश करने के लिए आगे बढ़ता है और इसे ये कदीम त्रिशूल मिल जाता है, लेकिन इससे पहले लेविथन इस पर हमला करता है। बुनियादी तौर पर वो इस ट्राइडेंट का निगरान है। लेविथन ड्रैगन और सांप के मरक्कब की तरह लगता है और बहुत बड़ा है। वो कहता है कि यहाँ जो भी आया वो इस लायक नहीं था और मैंने इन सब को मार डाला। आर्थर, जैसा कि हमने इब्तिदाई तौर पर सीखा, समंदरी मखलूक के साथ बातचीत कर सकता है, तो वो इससे बात करता है। वो मखलूक इससे पूछती है कि क्या तुम मुझे सुन सकते हो? इससे पहले मुझे कोई नहीं सुन सकता था। आर्थर अपनी कदर का दावा करता है और दावा करता है कि वो ट्राइडेंट का सही अलंबरदार है। मैं इस काबिल हूं, मुझे 7 समंदरों पर हुकूमत करनी चाहिए। आखिरकार लेविथन इत्तेफाक करता है और आर्थर को वो ट्राइडेंट मिलता है।
ट्राइडेंट्स हासिल करने के बाद आर्थर की ताकत बढ़ जाती है और उसका लिबास बदल जाता है। समंदर की तमाम सल्तनतें ओरम की हिमायत कर रही हैं, इसीलिए ओरम खुद को ओशीन मास्टर का हकदार ठहराता है, जिसका मतलब है कि इसके फैसलों पर अमल किया जाएगा। वहां ओरम के हामियों को मालूम हुआ कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल कर लिया है। ट्राइडेंट का हामिल उसूल के मुताबिक हकीकी बादशाह और ओशीन मास्टर होगा, इससे कोई सवाल नहीं किया जाएगा। सबको इत्तला दी जाती है कि आर्थर ने ट्राइडेंट हासिल किया और वो हकीकी बादशाह है। लेकिन ओरम गुस्से में आ जाता है और कहता है कि ट्राइडेंट के हुसूल से कोई फर्क नहीं पड़ता, कौन बहादुर और ज्यादा हुनरमंद है, वो ओशीन मास्टर होगा जो तमाम रियासतों की सदारत करेगा। ओरम और आर्थर एक बार फिर आबदोज पर लड़ते हैं। इस लड़ाई में आर्थर ओरम को मारता है और लड़ाई जीत जाता है, लेकिन उसकी बजाय इसे मारा नहीं जाता और उसे बरकरार रखने का रुझान होता है। मलिका अटलानिना इसे अपने साथ जाहिर करती है। जब वो देखता है कि आर्थर ने अपनी मां को बचाया है तो वो अपनी किस्मत को कबूल करता है और अपनी शिकस्त तस्लीम करके खुद को गिरफ्तारी के लिए पेश करता है। अटलांटिस के सिपाही इसे पकड़ कर ले गए और यहां हमारी फिल्म की वजाहत खत्म होती है। अगर आपको ये पसंद है और मजीद देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में फिल्म का नाम लिखिए, हम इसे भी समझाने की कोशिश करेंगे।